Welcome to home classes. Today our topic is double column cash book. Double column cash book means cash book with two column, double column. It may be with the cash and discount column or bank and discount column or cash and bank column. Today we will discuss cash and discount column cash book or cash book with the cash and discount column. First of all, we must know what is the discount. Discount is the concession or reduction in the price. It is usually in the percentage, like 10% on the sale price, 20% on the sale price. So discount is the reduction or the concession in the sale price of the goods. It is of the two types, cash discount and the trade discount. Cash discount is the concession given by the seller to the buyer. It is allowed for the immediate payment of the cash or payment within the short period. It is conditional. सेलर एक कंडीशन रखता है बायर के लिए कि अगर वो टाइम पे मुझे पैसे दे देगा, अगर टाइम पे वो पैसे दे देता है, इमीडिएटली पैसे दे देता है या फिर शॉर्ट पीरियड में वो पैसे पे कर देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा. इट इज़ अ कंडीशनल. And trade discount, it's a reduction on the catalog price और लिस्ट प्राइस और MRP पे जो रिडक्शन दी जाती है, यूजुअली इट इज़ गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर्स और होलसेलर्स टू द रिटेलर्स ऑन द बल्क परचेजेस. It can be on the cash purchases, credit purchases. It is allowed at the time of the sale. Now, it is not opened in the ledger. Trade discount account is not opened in the ledger, but cash discount account is opened in the ledger. That is the discount allowed account and the discount received account. हम discount allowed account खोलते हैं, discount received account खोलते हैं, but this is not shown. Trade discount is not shown in the books. Cash discount, अब कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है. डिस्काउंट अलाउड मीन्स दैट यू हैव अलाउड द डिस्काउंट. आपने डिस्काउंट दिया है, दैट इज़ योर लॉस एंड इट इज़ डेबिटेड. इट इज़ ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द डिस्काउंट, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स अ प्रॉफिट. इट इज़ ऑन द credit side. It is on the credit of the discount column of the cash book. Now, format of the cash book. Have a look. Cash book with the cash and discount column. We have date column, particulars, voucher number, ledger folio, discount column, amount column, date, particulars, voucher number, ledger folio, discount column, amount. It's a credit side, it's a debit side. लेफ्ट हैंड साइड इज़ द डेबिट साइड. रिसीट साइड, जैसे पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि रिसीट साइड इज़ द डेबिट साइड एंड द पेमेंट साइड इज़ द क्रेडिट साइड. नाउ वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द problem number 4 of your book, J&K board book. Now, first transaction is cash in hand 750. As I have told before, it's a cash in hand. Cash in hand is the opening balance. Opening balance को हम लिखते हैं to balance brought down. हम लिखेंगे to balance brought down 750. ये अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 750. अमाउंट कॉलम में, डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट आएगा, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 750. तो डेट आप कर दीजिए January 1. नाउ नेक्स्ट इज January 4 रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स. रिसीव्ड फॉर पैसा आया, यू आर रिसीविंग द मनी. आपने कैश रिसीव किया तो ये इस कॉलम में आएगा 6350, डेबिट की तरफ आएगा. टू सेल्स, किस कंटेक्स्ट में? टू सेल्स January 4 टू सेल्स 6350. नाउ थर्ड एंट्री इज, थर्ड आपकी जो ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम आशुतोष ₹5200. यू हैव रिसीव्ड द मनी. आपने पैसा रिसीव किया है. कितना रिसीव किया? 5200. तो आपने 5200 अमाउंट रिसीव किया है और डिस्काउंट अलाउड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, आपने उसको अलाउ किया है डिस्काउंट. ये आपका लॉस है, ये आपका डेबिट की तरफ आएगा. लॉसेज आर डेबिटेड, ये आपका डेबिट की तरफ आएगा, डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक.
तो ये है हमारा रिसीव्ड फ्रॉम आशुतोष, तो आ जाएगा टू आशुतोष। ये है जनवरी 5 टू आशुतोष, 300 इज़ डिस्काउंट एंड 5200 इज़ द अमाउंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 7 पेड टू अस्मिता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट फॉर रुपीज़ 2500 आपने उसको पे करने थे, लेकिन आपने उसको 2400 ही पे किया। 2400 पे किया तो ये इस तरफ आ जाएगा 2400। ठीक है। बाय अस्मिता और ये डेट आ जाएगा जनवरी 7 और 2400 एंड डिस्काउंट इज़ 100। ठीक है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट अलाउड टू आशुतोष ऑन 5 जनवरी वॉज रॉन्ग एंड हैंस कैंसल्ड। जो आपने जनवरी 5 को डिस्काउंट दिया था आशुतोष को, वो गलत है और आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये एंट्री हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्योंकि डिसअलाउड की कोई भी एंट्री हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। अभी ये कैंसिल हो गया पुराना डिस्काउंट, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज जनवरी 10 बॉट गुड्स फॉर कैश। व्हेन यू आर बाइंग गुड्स फॉर कैश, आपका कैश जाएगा, तो बाय परचेजेस 1500। जनवरी 10 बाय परचेजेस 1500। ठीक है। बाय परचेजेस 1500। ये आपका ये बॉट गुड्स फॉर कैश 1500, तो यहाँ पर आ गया बाय परचेजेस, पैसा गया 1500। ठीक है। उसके बाद है पेड फॉर स्टेशनरी 250। पेड फॉर स्टेशनरी, तो यहाँ पर आएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट जनवरी 11 250। स्टेशनरी के लिए पैसा गया, जनवरी 11 की एंट्री है, बाय स्टेशनरी अकाउंट 250। ठीक है। पेड फॉर स्टेशनरी। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, पेड फॉर स्टेशनरी 250 हमने कर लिया। जनवरी 14 मिस्टर पार्थिक settled his account of rupees 3500 by paying 3350। अब 3350 ये आपको मिला है। मिस्टर प्रतीक ने अपना अकाउंट सेटल किया है, उसने 3500 देने थे, लेकिन 3350 उसने दिया है। 3350 आपको पे किया है, तो यू आर रिसीविंग दिस मनी, आपने इसको रिसीव किया है। मिस्टर प्रतीक ने दिया है और आपने रिसीव किया है, तो इस तरफ आएगा 3350 और डिस्काउंट आ जाएगा 150, क्योंकि उसने देने कितने थे, 3500 देने थे, दिए कितने 3350 दिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रतीक और डेट इज़ जनवरी 14। ठीक है। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम संतोष। हमने पैसा रिसीव किया 1875 एंड वाज अलाउड डिस्काउंट, और उसको हमने डिस्काउंट दिया 125, तो ये रिसीव्ड है 1875, तो यहाँ पर आ जाएगा 1875 और डिस्काउंट है 125 और टू संतोष जनवरी 16। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जनवरी 17 की, आपकी है कैश पेड टू एक्सिस बैंक। कैश पेड, तो यहाँ पर आएगा बाय एक्सिस बैंक और जनवरी 17 और कितना 7500। ठीक है। उसके बाद है सेटल्ड करमजीत अकाउंट ऑफ रुपीज़ 1000 बाय सेंडिंग। आपने मनी ऑर्डर भेजा उसको 950 का, पैसा गया, मनी ऑर्डर भेजा 950 का, देना कितना था 1000, तो ये 50 आपका डिस्काउंट है। और ये किस कंटेक्स में गया, बाय करमजीत। ठीक है। बाय करमजीत जनवरी 19। उसके बाद है remitted मिस्टर विजय 131350 एंड ही अलाउड डिस्काउंट 150। उसने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट दिया है, आपको मिला है ये डिस्काउंट, और ये आपको मिला है डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ गया 150। तो ये पैसा यहाँ पर आपने पैसा दिया विजय को और उसने आपको डिस्काउंट भी दिया।
तो बाय मिस्टर विजय, जनवरी 20, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। करमजीत intimated that the discount claimed by us on 19th is disallowed। करमजीत ने बोला है कि जो मैंने डिस्काउंट दिया, क्लेम किया था, वो डिसअलाउड है, तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। कैश बुक में जो पहले डिस्काउंट था अब डिसअलाउड हो गया है, हमने इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। नाउ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, तो 200 टू इंटरेस्ट ऑन investments January 23, to interest on investments January 23 200 अमाउंट कॉलम में। पेड रेंट फॉर द मंथ 350 आपने पे किया क्रेडिट की तरफ। बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, आप यहाँ पे अकाउंट लिख लीजिए, बाय परचेजेस अकाउंट और बाय रेंट अकाउंट January 27, बाय रेंट, पेड रेंट फॉर द मंथ 350। नाउ सैलरीज पेड, लास्ट है सैलरीज पेड 2600, तो सैलरीज पेड भी यहाँ पर आएंगी क्रेडिट की तरफ। बाय सैलरीज अकाउंट 2600 जनवरी 30, और हमने इस तरह से सारी एंट्री कर ली हैं। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हैव अ लुक, और ये हमने सारा क्वेश्चन कर दिया। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे, सबको इसको भी टोटल करेंगे, और जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन ये क्लोजिंग कैश रहेगा लास्ट ऑफ द मंथ जनवरी 31 की डाल दीजिए। और जो नेक्स्ट मंथ, ये सारी जनवरी की एंट्रीज़ हैं, आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो जनवरी के बाद फेबररी, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ फेबररी 1 को आपका आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो क्लोजिंग कैश है यहाँ पे ओपनिंग कैश हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप इधर लिखेंगे, यहाँ पे टोटल कर दीजिए।